recording. You can see the screen, right? Yeah. Okay, that's great. बस एक second और रुक जाओ. I will go. Okay. So I'm going to put my first question to you. Okay? Okay. Yes. Very easy problem. Already we have done it also. Go for it. Do I have to tell you the answers now itself? Yes, now. Okay. Give me 2 minutes. Yeah, so solve भी करो अभी बताओ. Yes, what happened? 1 second, almost done. Okay. Is it 17 centimeter? Let me check out also. Yes, you are right, 17 centimeter. How you did? अच्छा आपका वो मोबाइल रेडी हो गया? Oh no. हाँ? नहीं. फिर कैसे मुझे भेजो कैसे कि आपने सही किया गलत किया स्टेप्स? मैं How आपको can we? बता सकती हूँ. Okay, you can tell me. मेरे I have my mom's phone with me. हाँ, अगर वो है तो बढ़िया है. आप भेज दो मुझे उस पे. If you have, send me right now. क्योंकि I need to see your working. Okay, आप भेजो. I will take water. Okay. Yeah. Yeah, send me right now. I sent it. Okay, I have received. Yeah. ऐसे मत भेजो, थोड़ा उल्टा करके भेजा करो, ठीक है? Okay, wait. फोन टिल्ट करके आप सेंड कर सकते हो मुझे.
Is this fine? लेट मी सी. हाँ ऐसे, बिल्कुल ऐसे सही रहता है. ठीक है. Yeah. अच्छा, अब आपको इस पर पता है कितने मार्क्स मैं दूंगा? इफ दिस क्वेश्चन इज अबाउट 3 marks, यू विल गेट ओनली 2 marks. Why? ओके, बिकॉज आपने कोई डायग्राम नहीं ड्रॉ किया. सर वो ड्रॉ करना कंपल्सरी नहीं होता ये हमारा. For us, they don't give us drawing diagrams as compulsory. if you will not draw the diagram, how you will make sure clarity कैसे होगी? टीचर ने मना रखा है कि नहीं, डायग्राम नहीं ड्रॉ They करना. said it's not compulsory. They said it's not compulsory. ऐसा क्यों बोलते हैं आपके टीचर? ना तो मुझे मालूम है इट शुड बी. ओके, Don't चलो know. ठीक है, कोई बात नहीं, डायरेक्ट कर रहे हो, इट्स ओके, बट यू शुड ड्रॉ इट. ओके, Okay, I'll do. ठीक है. हाँ, Sir, how क्योंकि many questions are there? हाँ अभी मैं और दे रहा हूँ, डोंट वरी. I'm just asking how many are there. मेरे पास हैं, बहुत सारे हैं. ओके, सो गिविंग यू नॉट टू वरी अबाउट इट. ठीक है. और मैं कोई भी ऐसा चीज नहीं दूंगा जो मैंने नहीं पढ़ाया है. आई विल नॉट गिव. फिजिक्स का भी करना है अभी, I नॉट know, ओनली I know. मैथ्स. हाँ, गो फॉर इट. मैं ऐसा एक भी चीज आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपने नहीं किया होगा. डोंट वरी, उसके लिए मत घबराइए आप. ओके, Yeah. गो फॉर इट. Can you hear me? Can you hear me? Hello? Yes, sir. One. Yeah, I can. Okay. Yes. Almost done. Almost done. 1 second. ठीक है, मुझे लगा गायब हो जाते हो आप, इसलिए मुझे पूछना पड़ जाता है. नहीं. ओके, ठीक है.
Wait 1 second, I did some mistake. I'm not getting it. Okay, you are not getting. I'm getting two answers. What answers you are getting? One I got 10 and the other one I got 15. Okay, let's see. Okay, no problem. आपने ये प्रॉब्लम बनाया हुआ है फिर भी you have the issue. No, I'm getting two answers. Okay, कोई बात नहीं. Let's see here. मैं इसको सॉल्व करता हूँ. ठीक है? Yeah. Okay. So this question is not able to solve, but I have to do it. So in this given figure, a circle with the center O is given to you, right? Can you see that? Yeah. Okay. फिर कहता है chord है जो भी है CE जो है. Wait. I think I got it. 1 second. Okay. One second. These are 8 and 8. Sir, 1 second. Yeah, okay, go ahead. Wait, we'll have to join OC, right? Yes. Yeah, okay, I got it. 1 second. So is it 10? Yes, it's 10. Right, good. I got it. Okay. We will Should I move send- now. Yeah. It's okay. You can leave it. I'm just going to give you another question. Sir, 1 second. Just give me a second. Somebody's calling on my mom's phone. No problem. Hello? Yeah. Go for it. Delivery had come. Yeah. 1 second. क्वेश्चन को अच्छे से देखो पहले पूरा.
बहुत आसान है ये. Okay. Once, let me try 1 second. Okay. Okay, 1 second. I think I got it. Give me a second. और आपको मुझे दिखाना भी पड़ेगा. हाँ, I'll send it to you. Yes. Yeah, I think I'm done. Can you hear me? Hello? Yes, yes. So send me. Yeah, I sent it. Yeah, I sent. Okay. Let me see. Give me a second. ये आपका आंसर यहाँ मैंने अपलोड कर दिया. Okay, let me verify it. So you have told OB is equal to Second, sir. BC. Pardon? Y. Yes. So आपने ये BOC को भी Y मान लिया. ठीक है. So ये क्या लिखा है? OBA. So OBA you can say it as 2Y. Good. 2y, yeah. Perfect. ठीक है. और फिर आपने बोला OA B रेडियस है. ठीक है. रेडियस है तो भी सेम. ये भी 2Y हो जाएगा. गुड.
तो आपने इसको माना AOC, ठीक है, अच्छी बात है। सो AOC जो आपने माना, सो व्हाट यू सेड हियर, 2y, ये कैसे कर दिया आपने? AOD क्या लिखा आपने यहाँ? AOD इज इक्वल टू एंगल OAC, एक मिनट, plus OAC, angle, yeah, and अच्छा plus अच्छा 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 angle अच्छा, ठीक 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 OS. ठीक ठीक, सही है सही है सही है, ओके हाँ, परफेक्ट। मैं वो यू एक कैन, बार मैं एंगल में कंफ्यूज हो गई थी तो मैंने तो वो गलत चीजें लिख दी। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, नो इशू, इट्स ओके, परफेक्ट, सही है। ओके, गिविंग अदर वन, होल्ड ऑन, ये तो आपने बहुत परफेक्टली बना लिया। आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू। Okay. So if you are done with this, we will go for this one, giving you. Uploading. Go for this one fast. I'm not sure. Wait, let me. Okay. I'm not sure about this one. I'll send you the answer. Okay.
this isn't clear. Yeah, I sent it. Let me see. आपने इसको क्या क्या किया है? Let me check out. I don't think it's right though. तो आपने ये लिखा MB is equals to NC. NC, sorry. तो क्वेश्चन है वो सेंटर AB ACR कॉर्ड्स दोनों इक्वल कॉर्ड बता दिया है, मतलब ये वाला कॉर्ड इसके इक्वल दे दिया मुझे, राइट? Yeah. ओके, एंड OP इज परपेंडिकुलर, ठीक है, अच्छी बात है। PB इज इक्वल्स टू QC प्रूफ करना था, बहुत सही, ठीक है जी। तो I'm not sure this is right. सिंपल सी बात, आप इसको, कैन यू सी दिस टू ट्रायंगल्स? कैन यू सी दैट? कैन यू सी? Yeah, I proved them congruent. ओके, हाँ बस वही करना है, यू हैव टू मेक इट Yeah, कॉन्ग्रुएंट। करने के लिए आपने क्या किया, लेट मी चेक। तो आपने MB लिखा है इज इक्वल टू NC। MB को NC कैसे बोल सकते हो आप? हेलो, Yeah. MB को NC कैसे बोल सकते हो? MB is equal to NC, yeah. कैसे, हाउ? आपको पहले प्रूफ करना पड़ेगा ना। हाँ, आपको पहले बताना पड़ेगा कि MB को NC कैसे बोल सकते हो, राइट? Yeah. ओके, तो उसके लिए तरीका ये है कि AB इज इक्वल्स टू AC, करेक्ट? Yeah. AB को हम लिख सकते हैं हाफ, नहीं, AB को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ MB, और इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ NC। लिख सकते हैं क्योंकि ये इक्वल हो जाएगा ना। हाँ. AB को हम लिख सकते हैं AM प्लस MB, या नहीं लिख सकते? AM Yeah, इज we इक्वल्स can. टू MB Yeah. प्लस MB, सो AB कितना हो जाएगा? AB इज 2MB। तो यहाँ से आप कैंसिल करके MB इज इक्वल्स टू NC बता सकते थे। चलो ठीक है, I was gonna write half AB is equal to half AC. कोई Then ठीक है, OM इज इक्वल्स टू NC ON, ठीक है। वो इसका रीजन लिखना पड़ेगा, बिकॉज द कॉर्ड्स आर इक्वल। chords are equal. Yeah. कॉर्ड्स आर इक्वल, इक्विडिस्टेंट है। फिर आपने क्या लिख दिया जी? OP OQ रेडियस, ठीक है। तो PM जो है वो PN के बराबर हो गया। PM ये, ओके एक मिनट, मैं रेड पेन ले लेता हूँ। PM जो है वो आपने क्या लिख दिया? PN। PN क्यों हो जाएगा? Wait, QN. वो मैंने इट गलत. शुड बी QN, ओके, इट शुड बी QN। तो चलो, एक ये इसके मिल गया, ये 90 हो जाएगा, ओके। और ये आपने एक तो ये लिखा, कॉन्ग्रुएंसी के लिए कहाँ लिखा आपने? ये रहा, ये बिल्कुल यहाँ इसके नेक्स्ट स्टेप का। MPB MB, ये एंगल कैसे आपने मान लिया कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा? NQC, उल्टा उल्टा लिख रखा है आपने यहाँ पूरा सब कुछ, इट्स नॉट प्रॉपर। आपने कहना चाहा है सही कि दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, दैट इज ओके, बट जो कॉन्ग्रुएंसी के लिए जो चीजें होनी चाहिए यहाँ पे, It's triangle MPB and triangle NQC. अब देखो, सिंपल सी बात है, मुझे दो चीजें प्रूव करनी है। क्या चीजें प्रूव करनी है? ये और ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, करेक्ट? Yeah. तो हम तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए दोनों ट्रायंगल ऐसे बना लिया करो, दोनों ट्रायंगल बना लिया करो। तो अगर ये M मानते हो, इसको B मानते हो, इसको P मानते हो, तो यहाँ पर कौन आना चाहिए? टेल मी द नेम्स, टेल मी नेम्स। यहाँ कौन आना चाहिए? N आना चाहिए। यहाँ कौन आना चाहिए? C। और यहाँ कौन आना चाहिए? Q। इस तरीके से आना चाहिए, राइट? ट्रायंगल MPB होना चाहिए, नॉट ट्रायंगल MBP। हाँ, अब देखो, सबसे पहली चीज कि MB इज इक्वल्स टू NC, राइट? या ये ऑलरेडी प्रूफ है आपके पास एक साइड। दूसरा,
PMB is equals to QNC. It is 90 degree. Can you see that? Yeah. And third is PM is equals to QN. तब आप बोल सकते हो जी साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया पे बोथ आर कॉन्ग्रुएंट एंड देन PB is equals to QC by CP/CT. Do you clear? तो Yeah. इस तरीके से लिखा जाएगा. आपको आता है, मैंने ये नहीं बोला कि आपने गलत सोचा, गलत आपने कॉन्ग्रुएंसी करना चाहा, बट जो कॉन्ग्रुएंसी के लिए चीजें जो लिखनी थी वो गड़बड़ लिख रखा है. Yeah. तो इससे क्या होगा, इससे मार्क्स कट हो जाएगा. क्लियर है? Yeah. कोई प्रॉब्लम? No. कोई दिक्कत? No. ओके, सो गिविंग यू अनदर प्रॉब्लम्स. रेडी? Give me a moment. Uploading. Go for it. Physics. Yes. Is it 60? 60 degree. 60. Okay. Right. Okay. Should I send photo? No, it's okay. I sent it already. Okay, then it's fine. Okay, go for this one. Go for it. Let me check out जो भेजा है. Okay. Units are not written. फिर वही गलतियां कर रहे हो आप. I did write everything. नहीं, यूनिट्स कहाँ लिखा है? F is equal to 12 Newton, W is equal to 12 joules, S is equal to 2 meters. नहीं, वो वहाँ लिखा है ना, नीचे. नीचे का नहीं लिखा, 60 डिग्री तो लिखा है. Okay, एक सेकेंड, I will just show you. जब आप एग्जाम में बनाओ, एक मिनट रुको, पुराना क्वेश्चन था. ये क्या हो गया अब इसको? एक सेकेंड, यहाँ आपने सब लिखा है, ठीक है. You need to write down here also. There also. हाँ, यहाँ भी लिखोगे अब आप. ये फॉर्मूला हो गया. मैं समझा रहा हूँ कैसे लिखना है. फॉर्मूला आपने लिख लिया, W is equals to FS cos theta, ठीक है. अब आप लिखोगे यहाँ 12 joule is equals to 12 न्यूटन. डिस्प्लेसमेंट कितना था? 2 meter cos theta, right? So therefore 12 joule upon 12 newton times 2 meter is equals to cos theta. अब इस तरीके से आप लिखोगे. क्लियर है? Okay, got it. तो half is equals to cos theta. half की वैल्यू जहां होती है, so you can write it down 60 degree. इस तरह यूनिट भी डाल के लिखोगे. मैं इसलिए वो नहीं लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बात समझो. नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम, ठीक है. लिखोगे तो मार्क्स कट होने से
दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, Okay. गो फॉर इट। नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने दे रखा है ऑलरेडी, Yeah, you can go I for couldn't it। see it. Yeah, Is it 1:2? Sir? yes Pia, I am here, yes Pia, I am Yeah, here, is it? give me a second। Yeah, Yeah, what is your answer? 1:2. 1:2, okay, let me also verify it। आप मुझे जरा भेजो कैसे आपने लिखा है, क्या लिखा है, मैं देखूं। Yeah. Yeah, I sent it. Yeah, give me a moment। Mass of ball A is double the mass of another, okay, तो आपने 2m मान लिया, mass of ball इतना मान लिया, ठीक है, and the ball A moves half speed of the ball, ठीक है। ये S क्यों लिखा आपने यहाँ, why you have written S? F? ये क्या लिखा है आपने, what is this? S. Speed. Oh, that's V. That's V. That's It should be V, Yeah, I meant V. ठीक है, Yeah. should be V, क्योंकि अगर आपने इसको S मान लिया तो इसको हाफ S होना चाहिए था, Yeah, I right? meant V only. Yeah, I ओके meant चलो V. ठीक है, कोई बात नहीं। सो कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, फिर आपने गड़बड़ करी यहाँ, फिर गड़बड़, शॉर्टकट क्यों यूज करते हो? यू शुड राइट डाउन हियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, या तो ऐसे लिख लो, या आपको इतनी इच्छा है तो आप ऐसे लिख लो, यू शुड एटलीस्ट दिखना चाहिए ना। स्कूल का टेस्ट नहीं है तो क्या हो गया, यही सब कमियां जो हैं आप घर में करते हो, फिर वही चीज स्कूल में निकलता है जाके, पता है आपको? Yeah. जो घर में गलती करते हो ना, वही चीज स्कूल में शॉर्टकट में निकलता है, और फिर टीचर आपका मार्क्स कट करता है, आती हुई चीज 0 बन जाती है। बात समझ रहे हो मैं क्यों बोल रहा हूँ? प्रैक्टिस करो तो Yeah. ढंग से करो, घर में भी है तो ठीक है, तो पूरा लिखो ना। हाँ, Yeah. शादियों में पार्टी में ठूस ठूस से खाते हो, घर में भी तो ऐसे ही खाते हो ठूस ठूस के। हाँ, Yeah. so you have to write down in proper way। अब यहाँ पे देखो आपने ये जो लिख दिया फॉर्मूला, तो ये तो गलत हो जाएगा।
दोनों से मतलब रेशियो 1। अंडरस्टैंड? आप समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे? Yeah. तो वैसे नहीं, अब यहाँ पे फिर आप लिखोगे, आपने आपने यहाँ हाफ एम बी स्क्वायर हाफ एम बी स्क्वायर लिख दिया, तो मैं तो सोच लिया जी हाँ जी रेशियो तो 1 हो गया, यहाँ बात खत्म। तो नीचे क्या लिखा है ये सब? इस तो गड़बड़ चीजें लिखी है आपने। वो तो मान लो टीचर है, मैं ठीक हूँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, तब तो मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, बट टीचर होता है हाँ, तो नीचे पूरा कट करता, वहां 0 देके छोड़ देता, तो आती हुई क्वेश्चन मिल गया Okay. 0। क्यों? लिखने का तरीका नहीं है। बात समझ में आई? ये Yeah. स्टेप देखो, ये वाला आई एम टॉकिंग हियर, यहाँ पे आपने डायरेक्टली लिखा, बात वही वही खत्म हो गई वहां पे, मतलब ही कुछ बचा ही नहीं लिखने को मेरे पास। वहां ये नहीं, वहां ये लिखा जाएगा, दिस ब्रैकेट, कैन यू सी? और रेशियो जब भी निकालते हैं तो डिवीजन में पहले निकालते हैं, देन हम उसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं। डू यू क्लियर? Yeah. डायरेक्टली यहाँ नहीं लिख देते इस तरीके से, पहले डिवीजन फॉर्मेट में लिखते हैं, जो कटा फटा जो लास्ट में बच जाएगा उसको हम रेशियो फॉर्मेट में लिखेंगे। फाइन? Okay. Okay. हाँ, तो मैं इसको देखो दिखाता हूं करके वापस से। तो अब आप यहाँ कैसे क्या लिखोगे? यू कैन राइट हाफ, मास के जगह, तो मास के जगह हमको लिखना पड़ेगा 2m। डू यू क्लियर? उसके Yeah. बाद वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज हाफ v, सो लिखोगे हाफ v का होल स्क्वायर, ऐसे लिखना है आपको। अंडरस्टूड? और नीचे हाफ m v स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम हियर, अगर मैं चेक करूं, सो के ई ए डिवाइड बाय के ई बी, एक मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, राइट? We can Yeah. cancel this half, we can cancel this half, this becomes 2m, and this becomes 1 by 4 ka v square, divide by m times v square, m से m cancel, ये v square cancel, ये 2 से ये 4 cancel, so you will be left with 1 by 2। ठीक है, अब आप लिखो यहाँ के ई ए is 2, के ई बी is equals to 1 is to 2। ये होता है एक्चुअल वे ऑफ राइटिंग। बात समझ में आई? Yeah. मतलब यहाँ पर आपने ये जितना लिखा, इसके बाद ये सब कुछ नहीं लिखोगे। डू यू क्लियर? इतना Yeah. स्टेटमेंट ये तो लिखोगे ही, ये दिस इज ओके, दिस पार्ट इज ओके, जो मैंने ऊपर अभी बनाया है ब्लू में, ये वाला पार्ट ओके है। इसके बाद आप ये स्टेप्स लिखोगे। डू यू क्लियर इट? Yeah. हाँ, ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, इनको थोड़ा रेक्टिफाई करो, ठीक है? फिर मार्क्स में मतलब एग्जाम में जो प्रॉब्लम आ रही है आपको, वो सारी दिक्कतें नहीं आएंगी। क्लियर है? Yeah. ओके, गिव मी मोमेंट प्लीज। अपलोडिंग वन प्रॉब्लम। दिस इज एमसीक्यू क्वेश्चन, बट मुझे स्टेप वाइज चाहिए, ठीक है? एमसीक्यू जरूर है, बट आई नीड स्टेप वाइज। Can I take G as 10? या यू कैन Or टेक no? इट, कोई बात नहीं, ले लो 10 ले लो, नो प्रॉब्लम।
Is it 1:2? Show me your answer. Just 1 second. Yes, and Okay. Give me a second. okay. Mass of 2 kg, another 4 kg, drop from 60 feet tall building after the fall of 30 feet each towards Earth. Kinetic energy, their respective kinetic energy will be in the ratio. Okay. ठीक है जी. No problem. ये क्या लिखा आपने? Yeah. 600. काइनेटिक एनर्जी को mgh क्यों लिखा आपने? मुझे समझ नहीं आया. Why you have written mgh as a kinetic energy? Can you see? Yeah. क्यों? वो क्यों लिखा? What is the reason behind it? Formula. कब मैंने kinetic energy is equals to mgh बोला है? You said cake. You said kinetic energy can also be mgh. नहीं. Yeah. नहीं, ऐसा नहीं बोला. I told you mechanical energy. No, you told me Mechanical. kinetic energy also. एक मिनट. Kinetic energy is equal to potential energy plus kinetic energy that will become is equals to mgh. ये हो सकता है. ओके. दिस का फॉर्मूला होता है mgh. इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv². ये है तरीका. Okay. अगर आपने ये फॉर्मूला लगा दिया तब तो रॉन्ग हो जाएगा. मैं इसको बताऊं? Shall I do? Yeah. Okay. Yeah. इसमें दिमाग ज्यादा लगाना ही नहीं था इस प्रॉब्लम में. ठीक है. आपको उस दिन मैंने कुछ कॉन्सेप्ट भी सिखाया था, वो मुझे दोबारा समझाना पड़ेगा आपको लगता है. If suppose that you have anything on some building, तो यहां से यहां जी इसकी हो गई हाइट h. करेक्ट. Yeah. अच्छा, तो हाइट h हो गया. तो इस पॉइंट पर, पॉइंट ए पर टोटल energy at point A will be what? Potential plus kinetic. Correct? So potential की वैल्यू होती है mgh. Kinetic क्या हो जाएगा? 0. That is the reason we are getting mgh as a total energy. Do you clear? Yeah. Okay. जब बॉल ऊपर से नीचे की तरफ गिरना शुरू करता है, मुझे नहीं पता यहाँ पर what will be the velocity. आपको मालूम है वेलोसिटी यहाँ क्या होगी? Do you know that? Do you know that? Yeah. क्या वेलोसिटी होगी? If this distance is x, so this will be root 2gx. Do you clear? Yeah. अच्छा, अब इसकी हाइट कितनी हो जाएगी from the ground? From the ground it will be h minus x. Do you understand? Yeah. So total energy at B, total energy at point B, that would be also potential energy plus kinetic energy. Potential energy हो जाएगा mg h minus x. Do you clear now? Plus ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर. तो v स्क्वायर मतलब 2gx. अब इन दोनों को सम कर दोगे, यू विल गेट mgh. अंडरस्टैंड? तो ये तरीका होता है कि आप किसी भी पॉइंट पे निकालो,
पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी वुड बी रिमेन इक्वल, दोनों का सम। लेकिन आपने बोल दिया कि जी काइनेटिक एनर्जी mg के बराबर, मैंने ऐसा नहीं बोला। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल तरीका, ये तो कॉन्सेप्ट था, ये क्या था, कॉन्सेप्ट, इसको याद रखना, ठीक है, कि टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं किसी पॉइंट पे, वो याद रखना यहाँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्टकट जो है वो मैं भी बताता हूं आपको। इस क्वेश्चन में अगर आप देखो, सो एक बिल्डिंग ये हो गई जी, ठीक है, और दूसरी बिल्डिंग ये ले लो, दोनों बिल्डिंग कितनी लंबी है, 60, दोनों बिल्डिंग कितनी लंबी है, 60। कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे 2 kg का मास है और यहाँ पे 4 kg का मास है। ये बॉल ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर गिर के मतलब 30 मीटर नीचे आ गया, कितना आ गया जी, 30 मीटर नीचे। 30 मीटर। यहाँ पर भी सेम चीज, तो वो 30 मीटर नीचे। तो क्या यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द बॉल और क्या ये वेलोसिटी, मैं इसको नाम देता हूं A और इसको मैं नाम देता हूं B, तो ये VA और VB अलग अलग होगा या सेम होगा, मास छोड़ दो, what would be the velocity here, what would be the velocity, Same. it would remain same, right? Yeah. क्योंकि हमको मालूम है फॉर्मूला √2gx, तो √2gx की जगह मैं लिख दूं 30, यहां भी क्या लिखूंगा, 2g 30, क्लियर है? अच्छा, अब देखो रेशियो निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ A अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ B, हाफ, मास की जगह 2 kg, V की जगह VA लिख दो स्क्वायर, हाफ मास की जगह 4 kg और VB का स्क्वायर, VA एंड VB आर इक्वल, VA एंड VB आर इक्वल, तो ये कैंसिल हो जाएगा, हाँ जी, ये हाफ ऑफ कैंसिल, ये 1 ये 2, सो आंसर तो ठीक आया आपका, आंसर तो ठीक है, लेकिन वर्किंग में प्रॉब्लम है, ये वर्किंग नहीं चलेगा, मैंने बस ये वाला स्टेप गलत लिखा है, बस वो स्टेप नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, अगर ये चलो ऑब्जेक्टिव में आपने टिक कर दिया तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाला आंसर मिल जाएगा, बट अगर ये एग्जाम में लिखना हो आपको स्कूल में तो 0 नंबर मिलेगा, 0। डू यू क्लियर? हाँ, ये तरीका है लिख करने का, फिगर मत बनाओ दैट चलेगा, लेकिन यू हैव टू राइट डाउन इन दिस वे, अंडरस्टैंड? ओके। कोई डाउट, कुछ बात हो, कहना हो? नहीं। Okay, fine. So you are left with 3 minutes. So just give me a second. बहुत सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है, ये कर दो आप। Okay, giving you. Very simple one, बहुत सिंपल है। Uploading. Go for it. 20. How? Power is work by time taken. Okay, work by time taken. That's good. That's good. देखो, ये जो टेस्ट है आपको गलत साबित करने के लिए नहीं है, मेरी बात समझो। Why I have taken this test, और इतना स्ट्रिक्टली टेस्ट इसलिए मैं ले रहा हूँ और सारा चीज बोल रहा हूँ नहीं ये नहीं चलेगा, द रीजन आप कहते हैं ठीक है मैं मान लूंगा, मुझे क्या है, आई विल एक्सेप्ट इट, बट क्या आपके स्कूल टीचर एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेगा ना, तो वो तो मार्क्स कम देगा, राइट? एंड इट विल अफेक्ट यू, बोर्ड में भी ऐसे ही रहेगा, तो यही चीजें होंगी। तो जो गलत आप करते तो सही हो, लेकिन कहीं कहीं लिखने के तरीके में, प्रोसेस में जो मिस्टेक हो, यहाँ जैसे ये प्रोसेस मिस्टेक है, ये प्रोसेस यहाँ मिस्टेक है, ये करा तो आपने आंसर सही, आंसर तो वही आया ना, आंसर क्या अगर अलग आया क्या आंसर? इट्स द सेम, बट द प्रोसेस इज रॉन्ग, तो आपको यहाँ टीचर मार्क्स कट कर लेगा, अंडरस्टैंड? यहाँ भी वही चीज है, किया तो आपने कॉन्ग्रुएंसी ही, सब कुछ बढ़िया किया,
लिखा उल्टा सीधा। करना तो आपने चाहा था कॉन्ग्रुएंसी, ये बात मैं भी समझ चुका था, बट आपने लिखा इसको उल्टा सीधा हाजमोला की तरह। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, मार्क्स कम आएगा। Yeah. आर यू गेटिंग टू द पॉइंट? Yeah, देखो यहाँ exactly. कुछ नहीं Yeah. था तो मैंने कहाँ कुछ बोला कि नहीं यहाँ गलत है। इसीलिए लिखने का तरीके पे यहाँ यूनिट का इस्तेमाल, यूनिट का भी इस्तेमाल जरूरी है, बिकॉज टीचर यूनिट पे भी मार्क्स कट करते हैं। ठीक है, सो Yeah. यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स, और इन सबको सुधारना है। ये नहीं कि हाँ बस ऐसे चलाते रहना है, हाँ गलती कर रहे हैं तो ठीक है गलती होती रहेगी, क्या मुझे क्या फर्क पड़ता। यू विल अफेक्ट बाय योर स्कूल एग्जाम। ठीक है, Yeah. क्लियर है? हाँ. चलो, सो वी विल मीट टुमारो। अच्छा टुमारो एक चीज, हाँ टुमारो आपका स्कूल कब खत्म होता है? कल फ्राइडे है ना? हाँ फ्राइडे है। 12:45 नॉर्मली है। हाँ 12:45। 12:45 पे। एक मिनट होल्ड करो जरा, जस्ट होल्ड अ सेकेंड। एक मिनट। 12:45 खत्म होता है, उस बच्चे को मैं अडॉप्ट नहीं कर सकता उस वक्त, इनको मैं कर सकता हूँ। ओके, उस बच्चे को तो संडे को मैंने डाल रखा है। ठीक है, कैन वी डू टुमारो 2 to 3? Yeah, you said 2 to 3 only, no? हाँ मैंने बोला था, मैंने वेरीफाई कराओ, 2 to 3 हम जा सकते हैं ना? हाँ, should be ओके fine. ठीक है, सो आई विल सेंड द, अच्छा मैं कल के लिए न्यू लिंक मिलेगा आपको, ओनली फॉर टुमारो। ठीक है, जो स्पेशल क्लास रहेंगे हमारी या एक्स्ट्रा क्लास, उसके लिए मैं न्यू लिंक जनरेट करता हूँ। ठीक है, तो कल और संडे के लिए आपको न्यू लिंक दी जाएंगी, आप उसका इस्तेमाल करके भूल जाओगे। मंडे से अपना फिर रेगुलर लिंक जो आपके पास है उसको इस्तेमाल करोगे। डू यू क्लियर? Yeah. कोई कंफ्यूजन है? नहीं. हाँ मैं नहीं होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म भी। अच्छा आपका फोन कब आने वाला है? I don't know, sir. ओके यू डोंट नो, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, सो वी विल मीट टुमारो 2 PM। क्लियर? अच्छा कल हमारा क्या होना है, एक सेकेंड, अच्छा दोनों दिन मैथ्स ही छूटा था ना हमारा, मंडे को भी और Yeah, भी। हाँ math, yeah. बोथ डेज मैथ्स होना है। ठीक है, ओके फाइन, चलो वी विल मीट टुमारो, बाय। Okay, bye, sir.